Once again, entire revision of the first lecture. We understand what is a radius. There are infinite radiuses which you can draw. Radius 1, 2, 3, 4, 5. How many diameters can you draw? Again, you can draw infinite diameters. 1, it should pass through the circle. 1, 2, 3, 4, etc. How many circumference does a circle have? There is only one circumference. Circumference is the length of the entire circle. So you have to start from some point, and this entire length measurement is called circumference, and area is this area which the circle is occupying. Chord. How many chords can you draw? You can draw infinite chords, small chords, big chords, very big chords. Objective question, the biggest chord of the circle is diameter. याद रखना, by heart करना, the biggest or longest chord of the circle is equal to diameter. दूसरी चीज, all diameters are chords. कितने भी डायमीटर ड्रॉ करो, ये सारे डायमीटर एक टाइप के chords है. बट all chords are diameters? No, all chords are not equal to diameter. कुछ chord छोटे होते हैं और छोटे chords diameter नहीं हो सकते. So all chords are diameters, but all chords are not diameters. All diameters are chords. What is an arc? Arc is a piece of circle from one point to another. This is an arc. This is another arc. This is a third arc. This is a fourth arc, and infinite arcs are there in a circle. What is a sector? Sector is made up of one chord and two radiuses. Basically a slice of pizza. पिज़्ज़ा का एक स्लाइस इज कॉल्ड सेक्टर, और छोटा स्लाइस है पिज़्ज़ा का तो वो माइनर सेक्टर, और बचा हुआ पिज़्ज़ा मेजर सेक्टर. एंड व्हाट इज अ सेगमेंट? सेगमेंट इज व्हेन वन chord and the corresponding arc join, it creates a shape called segment. This red color is minor segment, and the remaining part of the circle, the remaining part of the biscuit, is major segment. This is the best photograph to understand arcs and chords and sectors and segments. Angle subtended by chord at the center. Major arc and minor arc. तो एक chord ड्रॉ करते हैं, वो chord तीन एंगल क्रिएट कर सकता है. This chord can create three angles. It can create angle at the center. So join the center with the 2 points. This is the first angle created by the chord at the center. इसको हम बाप बुलाते हैं. बाप for understanding. Then the chord can create an angle on the major arc. Major arc ऊपर है, और major arc पे the angle created is beta. And the third angle which can be created by the chord is on the minor arc. And minor arc पे जो angle बना वो है दादाजी. और बाप बेटा दादाजी का रिलेशनशिप फिक्स है. बेटा x तो बाप उसका डबल 2x, और बेटा x तो दादाजी उसका सप्लीमेंट्री 180 minus x. So sometimes you will need this to solve the sums x, 2x and 180 minus x. Now I'll teach you something new.
chord AB. Chord AB subtends an angle at the center. Another chord CD. This chord also subtends an angle at the center. The center most of the times is called O. Depending on the size of the chord, the angle will be decided. Let's say this angle is 80 degrees. बड़ा chord बड़ा एंगल, छोटा chord छोटा एंगल. Now question is, what is angle OAB? ये एंगल ढूंढना है. What is angle OBA? What is angle OCD? What is angle ODC? इसमें आइसोसेलेस ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट होगा. आइसोसेलेस ट्राइंगल. नाउ व्हाट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल? Isosceles triangle is a triangle where two sides are same. Which two sides are same? The two radius. OB सर्कल का रेडियस है, OA भी सर्कल का रेडियस है. Therefore OA and OB are same. और आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर दो साइड सेम है तो वो दो साइड के सामने का एंगल ये दोनों भी सेम है. दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. एंड हाउ टू फाइंड आउट? बाय सॉल्विंग द सम. देखो ध्यान से कैसे. इन ट्राइंगल OAB, OA is equal to OB is equal to radius. Therefore OA is equal to OB is equal to radius. Therefore it's isosceles triangle. Therefore angle A is equal to angle B. Let angle A is equal to angle B is equal to x. हमने क्या किया? दोनों एंगल सेम है, पता नहीं क्या है लेकिन सेम है. लेट बोथ द एंगल्स बी x. देयरफॉर इन ट्राइंगल OAB या AOB जो भी लिखना है, एंगल O प्लस A प्लस B इज 180. दिस इज कॉल्ड एंगल सम प्रॉपर्टी. ये बाय हार्ट करो. दुनिया के किसी भी ट्राइंगल में तीन एंगल का टोटल 180 होता है. तो ट्राइंगल OAB में तीन एंगल है, एंगल O, एंगल A, एंगल B. टोटल इज 180. एंगल O इज 80, A is x, B is also x, is 180. x plus x 2x और 80 सामने माइनस हो जाएगा. 2x is 100. Therefore x is 50. मिल गया आंसर. एंगल A is equal to B is equal to x is equal to 50. अगर कॉर्ड छोटा है तो क्या हुआ? कोई फर्क नहीं पड़ता है. द सम एग्जैक्टली रिमेन्स द सेम. इन ट्राइंगल OAB, भाई OAB नहीं रे, ट्राइंगल का नाम बदल गया है. OCD इन ट्राइंगल OCD OC is equal to OD
is equal to radius. Therefore triangle OCD is isosceles. Therefore angle C is equal to angle D. तो C और D सेम है, वो एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो इतना सा लिखो, एक्सप्लेन हो जाता है कि दो साइड सेम, क्योंकि दोनों रेडियस है इसलिए उसके सामने के दोनों एंगल सेम. लेट एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू x. देयरफॉर इन ट्राइंगल OCD एंगल O प्लस C प्लस D इज 180. O 30 है, C और D दोनों सेम है जो पता नहीं, इसलिए x प्लस x 2x, 30 सामने माइनस 150, x इज इक्वल टू 75. देयरफॉर फाइनल आंसर एंगल C इज इक्वल टू D इज इक्वल टू 75. दोनों 75 है. So this is where the topic of isosceles triangle comes into picture. I'm writing two questions. You have to write it in your notebook and try to solve it immediately. Question copy करने की जरूरत नहीं है. Chord XY creates angle 50 at the center O. Find angle OXY and angle OIX. एक और सम, chord DF creates angle 100 at the center O. Find angle ODF and angle OFD. Try to solve them with method. Pause the video, solve both the sums, and then only restart the video to see the solution. पूरे चैप्टर में फिगर सबसे इंपॉर्टेंट है. विदाउट फिगर यू विल नॉट गेट मार्क्स. chord XY O, the angle at the center is 50. अब कैपिटल X और कैपिटल Y है, ये दोनों सेम है, स्मॉल x स्मॉल x. इन ट्राइंगल OXY, OX is equal to OY is equal to radius. Therefore triangle is isosceles. Therefore angle X is equal to angle Y. Let angle X is equal to angle Y is equal to छोटा x. Therefore in triangle OXY, angle O plus x plus y is 180. 50 plus x plus x 180 2x is equal to 130. 50 सामने माइनस हो गया, and 130 divided by 2 is 65. Final answer angle x is equal to y is equal to 65. सेकेंड सम का डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं 40-40 बिकॉज द एंगल क्रिएटेड एट सेंटर वाज 100, तो 180 बनाने के लिए बाकी के दो एंगल 40-40. दिस सम हैज अ ट्विस्ट. No need to copy the question, but draw and solve yourself. Chord PQ of a circle with center O
angle OPQ is equal to 25. Find the angle subtended by chord at the center. Pause and try yourself, then restart the video to see the solution. सबसे जरूरी फिगर, chord PQ, center O. Chord PQ of circle with center O, angle OPQ 25. कहाँ है OPQ? ध्यान से देखो, एंगल OPQ मतलब एंगल P. OPQ 25. Find the angle subtended by chord at the center. ये ढूंढना है. How will you write this sum? In triangle OPQ, in triangle OPQ, OP is equal to OQ is equal to radius. Therefore triangle is isosceles. Therefore angle P is equal to angle Q. Therefore P तो 25 है, Q भी 25 मिल गया क्योंकि P और Q सेम है. You can write it in the figure as well. And then you shift to angle sum property. ये जो चीज हम कर रहे हैं उसको एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं. That in triangle OPQ, angle O plus P plus Q is 180. इसका नाम है एंगल सम प्रॉपर्टी. O पता नहीं तो उसको O ही रहने दो. It's not compulsory to take X. 25, 25, 25 plus 25, 50 सामने माइनस हो जाएगा. द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर इज 130. सम ओवर. इजी. आगे जाते हैं. अ कॉन्सेप्ट. How many angles are created by the chord at the center? सवाल है, how many angles are created by the chord at the center? Answer is 1. How many angles are created by the chord on the major arc? Infinite. How many angles are created by the chord on the minor arc? Infinite. कैसे? chord angle created at the center means you have to join it with the center. सर्कल के कितने सेंटर होते हैं? एक. तो सेंटर पे कितने एंगल बनेंगे? सिर्फ और सिर्फ एक. अ यूनिक एंगल इज क्रिएटेड एट द सेंटर. 2, 4, 5 अलग एंगल नहीं हो सकते. एक कॉर्ड एक एंगल क्रिएट कर सकता है. बट मेजर आर्क के ऊपर, मेजर आर्क यहां से शुरू होता है यहां तक. दिस इज मेजर आर्क. Major arc is made up of many points. I am choosing 1, 2, 3, 4, 5, 6 points. The red colored chord is subtending angle 1 on the major arc. The same red colored chord can subtend another angle on the major arc. The same chord
is able to subtend many angles on the major arc which is in front of you. इसमें कॉन्सेप्ट क्या है वो ध्यान से याद कर लो. If I call this angle 1, 2, 3, 4, 5, 6, the concept is भले बहुत सारे एंगल ड्रॉ कर सकते हैं but all the angles are same. ये एक्चुअल में भी ड्रॉ करके देख सकते हो, प्रोट्रैक्टर से मेजर कर सकते हो कि मेजर आर्क पे इनफाइनाइट एंगल्स आर पॉसिबल बट ऑल दोज एंगल्स आर सेम. रिमेंबर इट. मैंने इसको नाम दिया है जुड़वा. जुड़वा का मतलब है दोज एंगल्स विच आर क्रिएटेड बाय सेम कॉर्ड. ऐसे एंगल्स जिसके पप्पा सेम है, एक ही कॉर्ड ने सारे एंगल्स बनाए हैं, देयरफॉर दे ऑल आर जुड़वा. तो माइनर आर्क पे क्या होगा? माइनर आर्क का सिनेरियो देखते हैं. कॉर्ड पी क्यू, माइनर आर्क स्टार्ट्स फ्रॉम हियर ए. ये पूरा माइनर आर्क है. माइनर आर्क के ऊपर आई एम टेकिंग 3 पॉइंट्स. The chord is creating this angle, and this angle on the minor arc. भले 3 एंगल है but value of these 3 angles is same. I call them जुड़वा. Judva means those angles which are created on major arc or minor arc by the same chord PQ या AB या जो भी है. Infinite possibilities, but all those possibilities have same value. सेंटर पे हमेशा एक एंगल, मेजर आर्क पे बहुत सारे, माइनर आर्क पे बहुत सारे. मेजर आर्क के सारे सेम, माइनर आर्क के सारे सेम. लेकिन कब? जब कॉर्ड सेम है. लेट्स प्रैक्टिस दिस कॉन्सेप्ट ऑफ जुड़वा. जुड़वा का कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करते हैं. मैं विजुलाइज करवा रहा हूं तुमको, ध्यान से देखना. I will draw many figures and you have to identify judwa in them. Giving names is very important. This is part of geometry. So every dot has a name. इसमें सेंटर का कोई रोल नहीं है.
in this figure there are many chords. मैं एक एक करके सारे chords के नाम ले रहा हूं. chord AB, chord AB, chord AD, chord BD, chord CA, इसको AC भी बुला सकते हैं, chord CD. बहुत सारे chords है. बट जुड़वा एंगल कहां है? ऐसा एंगल ढूंढो जो एक ही chord बना रहा है. एंड इट्स वेरी ट्रिकी. आई होप तुमको समझ में आए. जनरली मैं तुम्हारे सामने होता हूं तो इजी होता है. इसके अंदर ये एंगल और ये एंगल सेम है, ये जुड़वा है. वाई? जो भी एंगल है उसके मेन पॉइंट्स की तरफ जाओ. किसने बनाया ये? ए डी. और ये एंगल में दो लाइन की दूसरी तरफ जाओ तो वही पॉइंट मिलेगा ए एंड डी. देयरफॉर द मास्टर chord which is creating the two angles is AD and the two judwa angles are B and C. Next, chords. सारे chords ही है. कौन से दो एंगल सेम लग रहे हैं? एंगल H एंड एंगल G. Why? बिकॉज G पे उल्टा ट्रैवल करो तो यू विल रीच द पॉइंट F एंड E. और ये एंगल पे भी उल्टा ट्रैवल करो, you will reach the same 2 points F and E. Therefore, FE is the chord which is creating two equal angles on major arc. थर्ड फिगर में कहां है जुड़वा एंगल्स? L और K का ये राइट साइड वाला पार्ट. बिकॉज when you travel on these two lines you will reach I and J, and when you travel on these two lines you will again reach the same point I and J. Therefore IJ is the chord which is subtending angle N and K on the arc. इसको समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जुड़वा एंगल फाइंड करना नहीं आएगा तो गड़बड़ है. इसमें एक और जुड़वा है, एक और जोड़ी है जुड़वा एंगल्स की. ध्यान से देखो. अगर जिसको भी कॉन्सेप्ट समझ में आया है, दैट पर्सन विल बी एबल टू आइडेंटिफाई वन मोर जुड़वा एंगल. The judwa angle is this angle A and this angle D. And who is creating it? BC. BC join नहीं किया है, इनविजिबल है, बट फिर भी इट इज अ जुड़वा एंगल. ज्वाइन हो या ना हो, BC एक कॉर्ड हो सकता है. And BC is creating angle A and angle D. Therefore, the two green angles are same. तो यू आंख नजर होनी चाहिए जुड़वा फाइंड करने के लिए. इसमें भी जुड़वा है, ढूंढने की कोशिश करो. H and G तो है ही बिकॉज ऑफ chord EF, बट दिस एंगल
इज इक्वल टू दिस एंगल। और ये दो एंगल जुड़वा क्यों है? बिकॉज दीज टू एंगल्स आर क्रिएटेड बाय द सेम कॉर्ड। विच कॉर्ड? एच जी, जो ड्रॉ नहीं किया है लेकिन है। सो कॉर्ड एच जी इज अ कॉर्ड विच इज क्रिएटिंग। तो कॉर्ड हो के ना हो, एंगल्स आर क्रिएटेड, एंगल्स आर सेम। तुम लिख सकते हो two angles are same because they are created by same chord HG, जुड़वा। इसमें भी दो है एंगल एक्स्ट्रा जो जुड़वा है। किथे? इथे। this angle I and this angle J, they both are created by an invisible chord LK। तो LK हो के ना हो, LK is creating one angle on I and same LK is creating another angle on J। एंगल I and J are जुड़वा। जुड़वा समझ में आया तो काम हो जाएगा, वरना फंस जाओगे। एनीवेज, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज एन इजी कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का कॉन्सेप्ट है, पहले तो क्वाड्रिलैटरल मतलब क्या? क्वाड्रिलैटरल इज अ शेप मेड अप ऑफ 4 डंडी। डंडी नंबर 1, डंडी नंबर 2, डंडी नंबर 3, डंडी नंबर 4। डंडी 1, डंडी 2, डंडी 3, डंडी 4। डंडी 1, डंडी 2, डंडी 3, डंडी 4। और सारी डंडी के सारे पॉइंट्स सर्कल पे होने चाहिए। दिस इज अ क्वाड्रिलैटरल मेड अप ऑफ 4 साइड्स। It's called cyclic quadrilateral। Why? क्योंकि इसके चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर है। तो क्या? तो जो क्वाड्रिलैटरल सर्कल के ऊपर है वो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है। और साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट इज आमने सामने के दो एंगल का टोटल 180 होता है। A प्लस C इज ऑलवेज 180। और आमने सामने के बाकी के दो एंगल का टोटल भी 180 होता है। इसका मतलब यू कैन राइट A प्लस C इज इक्वल टू B प्लस D। ये 3 कॉन्सेप्ट या 3 फॉर्मूला याद रखो। A plus C 180, B plus D 180 and A plus C is equal to B plus D। If I have to write it for X, Y, Z, W, तो X plus Z आमने सामने is 180, Y plus W is 180। Therefore, you can also write, if you want to, X plus Z is equal to Y plus W। इसमें क्या लिख सकते हो? OP MN, MNOP is a cyclic quadrilateral। Therefore, M plus P is 180, O plus N is 180। Therefore, you can also write, if you want to, सम में अगर काम आता है तो लिखो M plus P is equal to O plus N। That is the concept of cyclic quadrilateral। क्या लिखा है नीचे? The sum of opposite angles
इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू 180। दूसरी भाषा में इसको बोलते हैं ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री डायलॉग का मतलब है ऑपोजिट एंगल्स का टोटल 180 है। सप्लीमेंट्री मीन्स 180। लेट मी शो यू सम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सम्स। जुड़वा सम्स बाद में करेंगे तो आ ही जाएंगे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सम्स में पहले तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए। ओ तेरी, नाम कंपलसरी है। सम के अंदर नाम नहीं है तो तुम लिख दो ABCD XYZ W वॉट एवर यू वॉन्ट। गिवन इज इन रेड कलर। कुछ तो इंफॉर्मेशन दी होगी। व्हाट इज गिवन इज D इज 40, C इज 100, फाइंड एंगल A, find angle B. X is 60, W is 110, find angle Y, find angle Z. So easy. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट यूज करना और कुछ नहीं लिखने का। वी नो दैट दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देयरफॉर एंगल A प्लस C इज इक्वल टू 180। A पता नहीं, C 100 है, एंगल A 80, सम ओवर। फिर से लिखने का, वी नोट दैट दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देयरफॉर D प्लस B इज इक्वल टू 180। D 40, सामने माइनस हो जाएगा, B 140। पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस सम योरसेल्फ बाय राइटिंग द फुल मेथड। दिखता बहुत इजी है बट इफ यू डोंट राइट द फुल मेथड यू विल नॉट गेट मार्क्स। सो प्लीज राइट डाउन। वी नो दैट XYZW is a cyclic quadrilateral, therefore angle X plus Z is equal to 180, 60 plus 180, Z का आंसर 120 और W 110 तो Y 70। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सम्स की थोड़ी सी अलग वैरायटी दिखा रहा हूं। Draw any random cyclic quadrilateral in your notebook। एक स्टेंसिल खरीद लो तो सर्कल ड्रॉ करना इजी हो जाता है। नेम इट ABCD। ABCD is cyclic quadrilateral, done। एंगल A एंड B आर सेम, लिखो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। सम ऑफ एंगल A एंड B इज 100। एंगल A प्लस एंगल B इज 100। तो A और B सेम है और A और B का टोटल 100 है। Isn't this logical? बट मेथड क्या? लेट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू x। दोनों सेम है इसलिए दोनों x। तो ये इक्वेशन ऐसा दिखेगा।
x plus x is 100, 2x is 100, x is 50 और x 50 मतलब एंगल A 50, एंगल B 50। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का फंडा A plus C is 180, A 50 जो सामने माइनस हो जाएगा, C 130 एंड सिमिलरली वहां पे भी 50 है B, तो D भी 130 ही होगा। Nobody will give you ready-made drawings, so keep a habit of drawing every sum. One more sum. Cyclic quadrilateral PQRS. First, let us draw. Name it. Angle P is 50. तो एंगल आर मिल जाएगा। तो लिखने का लंबा लंबा, वी नो दैट दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, देयरफॉर एंगल पी प्लस आर 180, 50 प्लस आर 180, एंगल आर 130। पहला आंसर मिल गया 130। अब क्वेश्चन में लिखा है एंगल क्यू इज हाफ ऑफ एंगल आर। एंगल Q इज एंगल R का हाफ, और एंगल Q इज, R तो मिल गया है, लो Q भी मिल गया 65। और अगर Q 65 है तो S प्लस Q 180 करके ये भी मिल जाएगा 115 सम ओवर। सो देयर आर लॉट ऑफ फैंसी वेरिएशंस व्हिच आर पॉसिबल टू बी मेड। एक चीज बतानी रह गई, जब एक नॉर्मल कॉर्ड होता है तो नॉर्मल कॉर्ड कैन क्रिएट एंगल एट द सेंटर एंड वन एंड ओनली वन एंगल इज पॉसिबल बिकॉज सेंटर एक ही है। देन द सेम कॉर्ड कैन क्रिएट मल्टीपल एंगल्स ऑन मेजर आर्क। And the same chord can create multiple angles on minor arc also. All blue angles are same, judwa. All green angles are same, judwa. And the angle at the center is red color.
अब ये सब क्यों? क्योंकि जो हमारे कॉर्ड भाई साहब है वो डायामीटर नहीं है. दिस कॉर्ड इज नॉट डायामीटर, इट्स अ नॉर्मल कॉर्ड एंड देयरफॉर कुछ भी एंगल हो सकते. ऐसे हजारों सम बना सकता हूं जिसमें अलग अलग एंगल्स आंसर है. बाप बेटा दादाजी रिलेशनशिप से सब मिल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल एक एंगल मैं दे दूं ना, सिर्फ एक एंगल, सब कुछ मिल जाएगा. ध्यान से देखो, आई एम गिविंग जस्ट वन एंगल. ये 30, सब कुछ मिल जाएगा. ये 30 तो उसका जुड़वा 30, ये भी 30. वाई? बिकॉज ऑल थ्री आर मेड बाय द सेम कॉर्ड. और बेटा अगर 30 है तो बाप 60, उसका डबल. और बेटा 30 है तो दादाजी सप्लीमेंट्री, मतलब 150. टोटल 180 होना चाहिए. और एक दादा 150 है तो दूसरा दादा भी 150, तीसरा दादा भी 150. सब मिल गया. अगर मैं बेटे की जगह दादाजी की वैल्यू दे दूं, ये दादा 100, तो ऑटोमेटिकली सारे दादाजी 100. और अगर दादा 100 तो बेटा उसका सप्लीमेंट्री 80. एक बेटा 80 तो दूसरा 80, तीसरा 80. और अगर बेटा 80 तो बाप उसका डबल 160. सब मिल गया. ये तो ठीक है. द कॉन्सेप्ट विच आई वॉन्ट टू टेल यू नाउ, विच इज अ बाय हार्ट कॉन्सेप्ट, इज कि अगर तुम्हारा कॉर्ड नॉर्मल कॉर्ड की जगह पे डायामीटर है, अगर तुम्हारा कॉर्ड नॉर्मल कॉर्ड की जगह पे डायामीटर है तो सब चेंज हो जाएगा. नाउ दिस कॉर्ड, if it tries to create an angle at the center, तो 180 डिग्री होगा. ये वर्कशीट के अंदर बाय हार्ट करने को बोला है. द एंगल सबटेंडेड बाय डायामीटर एट द सेंटर इज 180. ये बाप है. अब ऊपर एंगल्स क्रिएट हो सकते हैं बहुत सारे, और ये सारे एंगल्स आर क्रिएटेड बाय द डायमीटर, मतलब ये सारे जुड़वा है और ये सारे बेटा है और बाप है 180. इतना बाय हार्ट कर लो कि जब डायमीटर इज द कॉर्ड तो सेंटर पे 180, मतलब बाप 180, तो बेटा उसका आधा 90 डिग्री. और सारे बेटे सेम होते हैं, जुड़वा ये भी 90, ये भी 90. What about the other side? Other side, it's exactly same scenario. Wherever you create an angle, it will be 90 only. So diameter is a special case जहां पे कोई सम नहीं बनता, सारे एंगल्स 90 होते हैं. So this is also 90. तो ये फिक्स होता है. जब भी डायमीटर है तो ये 90, 90 और 180 होंगे, इसलिए कोई क्वेश्चन पूछता ही नहीं है क्योंकि ये एक ही ऑप्शन है. एंड वन मोर थिंग, सर्कल छोड़ो, सेमी सर्कल सोचो. थिंक अबाउट अ सेमी सर्कल. तो एक रूल है, सेमी सर्कल के अंदर बनाया हुआ कोई भी एंगल हमेशा 90 होता है. सेमी सर्कल के अंदर दिस एंगल इज ऑलवेज 90. दिस इज 90. यू कैन ट्राई इट एट होम. प्रोट्रैक्टर से सेमी सर्कल बनाओ, कोई भी पॉइंट ज्वाइन करो, यू विल ऑलवेज गेट 90. एंड दिस इज टू बी बाय हार्टेड. दिस कॉन्सेप्ट वो यहां से आता है. ध्यान से देखो, तो डायमीटर इज दिस और ये सेमी सर्कल है
और सेमी सर्कल के अंदर 90 है। देयरफॉर सर्कल छोड़ो, सिर्फ सेमी सर्कल है तो भी पता होना चाहिए कि सेमी सर्कल के अंदर का एंगल हमेशा 90 होता है। एनीवेज, दैट वाज अ स्मॉल कॉन्सेप्ट। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमने किया। Chord radius distance sum, we'll do it next time because we are crossing almost an hour. Do the homework sincerely and properly and see you next time. Bye.